अजीज दोस्तों नमस्कार। मेरे इस अजीम देश भारत को किस तरह इन्वेडर्स ने लूटा खसूटा, इसके हवाले से, इसकी अजीम हेरिटेज के हवाले से कितना हमारा ग्लोरियस पास्ट था और किस तरह इन्वेडर्स ने बर्बाद किया, तो उस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगेन ज्ञान टाइम फ्रॉम अदर डिग्निटरीज। ये एक बहुत ही खूबसूरत स्पीच है, 5 मिनट की आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें बड़ा हौसला चाहिए होता है कि आप अंग्रेज़ों के बीच में अंग्रेज़ों की गलत कार्यों को एक्सपोज करें। और ये वही कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह इस देश की 45 ट्रिलियन पाउंड स्टर्लिंग लूटे गए बाय अंग्रेज सरकार 200 साल में। 45 ट्रिलियन डॉलर पाउंड्स, अंदाज़ा लगाएं, अंदाज़ा 1 ट्रिलियन पाउंड में 1000 बिलियन होते हैं, लाख करोड़ होते हैं। लाख करोड़ पाउंड का मतलब हुआ 100 करोड़, 100 लाख करोड़ पाउंड रुपये। अंदाजा करें आप, सुनिए। Over to you, Vijay, because many of us say we're fighting the same fight again and again and again. There was a conversation yesterday, will this fight ever end? Will this fight ever end? Well, first, Asad, thanks for forcing me to come to Glasgow. When I walk the streets of cities like this, you know, Glasgow was the UK's second most important city. Beautiful buildings, beautiful streets, a gorgeous city. You know, it had Red Clydeside in 1919, the uprising to create a Soviet in Scotland. But it was, you know, crushed, of course. When I see cities like this, I think also about the other side of it. You know, there's a phrase from Walter Benjamin, every monument of civilization is also a monument of barbarism. I think of the famines in Bengal, the jute workers in Bengal sending jute to Dundee through the Glasgow port. I think of human beings from Africa enslaved and brought from Ghana to the New World, and all those prophets getting sucked into cities like London and Glasgow. You know, between 1765 and 1938, the British Isles stole $45 trillion pounds from India, 45 trillion sterling from India. We never got paid for that. When the British left India, when we threw the British out, our literacy rate was 13%. So much for several hundred years of so-called civilization. Meanwhile, our landscapes were destroyed. You know, coal was foisted on India. You foisted coal on us. You were the ones that came and made us coal dependent. And then you left, and now you dare to condescend to us. When I listen to Boris Johnson, when I listen to people like Joe Biden, when I listen even more to Emmanuel Macron, all I can think of is how condescending you are. You condescended to us 400 years ago. You condescended to us 300 years ago. You condescended to us 200 years ago. You condescended to us 100 years ago. You're condescending to us today. You only know condescension because for you, colonialism isn't something that happened in the past and we defeated you. It's not that. For you, colonialism is a permanent condition. And that permanent condition happens in two ways. There's the permanent condition of the colonial mentality. You want to lecture us. You want to tell us that we are responsible for all the problems because you'll never accept that you're the one principally to blame. You signed the Rio Formula in 1992 on common and differentiated responsibilities. You like the common part. You like the common part. You like to say we're all in this together and so on. We're not in this together.
The United States, 4-5% of the world's population, still uses 25% of the world's resources. You outsource production to China, and then you say China is the carbon polluter. China's producing your buckets. China's producing your nuts and bolts. China's producing your phones. Try to produce it in your own countries and see your carbon emissions rise. You love lecturing us because you have a colonial mentality. Then there are colonial structures and institutions. You lend us money, and every time you lend us money, which is our money, every time the International Monetary Fund comes to our societies and they tell us, here's the money we are giving you. No, it's our money. You give us our money back as debt, and then you lecture us about how we should live. It's extraordinary. It's not just a colonial mentality. It's the colonial structures and institutions which reproduce themselves year after year after year. And let me tell you something. The climate justice movement, not clued enough on this. Not clued enough on this. The climate justice movement is a movement that says we're worried about our future. What future? What future? Children in the African continent, in Asia, in Latin America, they don't have a future. They don't have a present. They're not worried about the future. They're worried about their present. Your slogan is, we're worried about the future. What future? That's a middle-class bourgeois Western slogan. You got to be worried about now. 2.7 billion people can't eat now. And you're telling people, reduce your consumption. How does this sound to a child who hasn't eaten in days? You got to clue into this, guys. You got to clue into this. Otherwise, this movement will have no legs in the third world. No legs. Later, I'd like to tell you about the International People's Assembly, a network of 200 political organizations that we're setting up, rooted in the global south. We want to tell you what our issues are, but are you willing to listen? Thank you, Vijay. ये जो अंग्रेज सरकार थी, इसी तरह फ्रांस ने लूटमार की अफ्रीका से, जिसका जहां दाव लगा, ये यूरोपियन सरकारें जो थी चर्चों के अंदर से जब निकली, तो चर्च उस वक्त ज़्यादातर जुल्म अपने लोगों पे कर रहे थे. इन्होंने वो जुल्म टर्न अराउंड कर दिया. अपने मुल्कों में डेमोक्रेसी ले आए, फ्रीडम ले आए, ह्यूमन राइट्स ले आए, तरक्कियाँ लाए, आम आदमी को भी अपने साथ मिला लिया और दूसरी दुनिया को लूटने लगे. दैट इज़ कॉल्ड कैपिटलिज्म. और ये कैपिटलिज्म ने दुनिया में हर आइडियोलॉजी को पीछे छोड़ दिया. और आज भी आप देख लें, दुनिया का फैसला 200 बड़ी कॉरपोरेट करती हैं और इनका इंटरेस्ट अपने ख़ानदानों की सिर्फ इंटरेस्ट होता है कि इनको किस तरह अपनी दौलतों को और बढ़ाएं. $420 बिलियन टॉप 10 रिचेस्ट आदमियों ने 2021 में अपनी दौलत में इजाफा किया. टॉप 10 रिचेस्ट पीपल जो हैं दुनिया में, उन्होंने 2021 में $420 बिलियन का इजाफा किया. और आम आदमी, छोटा कारोबारी, जॉब पे लगने वाले का ये 2021 कैसा रहा, ये आपको भी अच्छी तरह पता है, मुझे भी अच्छी तरह पता है कि हम लोगों ने किस तरह ये सरवाइव किया है. विवेक अग्निहोत्री जी आजकल अमेरिका के दौरे पे हैं, कश्मीर फाइल्स फिल्म के उसके लिए, और वो बड़े ज्ञान के हवाले से चीज़ें वहाँ पे खुल के स्पीचेस कर रहे हैं उनके देश में बैठ के. सुनिए The जरा. world is ruled by a nexus of politics and corporate world. But the bad side of capitalism is creating greed, cutthroat competition, killing people for profit, making countries fight with each other to sell arms, funding warlords for capitalistic gains, is trying to dumb down human beings. And that is the reason that today if you talk about this persecution, you are called Islamophobic. Nobody has problem at individual level. You will never hate me as a human being unless somebody brainwashes you. And which is why people are fighting with each other. Anybody who talks about Islamophobia definitely has a political agenda. I don't see any Islamophobia. The phobia is a terror phobia. And what happened in Kashmir, it wasn't just Hindus who were killed.
Any moderate Muslim who raised voice against terrorism was killed. Christians who raised voice against terrorism were killed. Buddhists who raised voice against terrorism were killed. Every single person who raised voice against terrorism was killed. That is the problem. But in this world, you can fight terrorists because they have guns. You can have bigger guns and you can fight them. But one thing you can't fight, people who spread fake narratives and brainwashing. It's become impossible for people to speak truth today because this politic and corporate nexus has taken over. That's why it's very important for you to understand that the biggest threat to this world is intellectual terrorism. The moment you try to speak your mind, somebody is there to silence you. They try every trick in the book to silence anybody who's against their political agenda. Which is why it's very important for creative people to tell the truth. And with that intention, we made this film, The Kashmir Files. I am not going to be silenced. When we keep silent, humanity suffers. अजीज दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया कि मुझे भी ये एक गुमान था कि 800 साल मुसलमानों ने यहाँ पे हुकूमत की, हिंदुस्तान पे, ये वो। तो बाद में पता चला कि 800 साल नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि छोटे छोटे इलाकों में मुख्तलिफ कभी इन्होंने हुकूमत की। जो ब्रिटिश इंडिया था, जितनी बाउंड्रीज उसकी थी, उस पर तो कभी मुसलमानों ने हुकूमत नहीं की पूरे एक साथ। और जो थोड़ा बहुत सुल्तान ऑफ दिल्ली और नॉर्थ इंडिया की तरफ इनकी हुकूमत रही, उसमें भी जो रेजिस्टेंस थी, वो मैंने अपनी कल परसों की वीडियो में डॉक्टर अमिंद्रा जी के बारे में बताया था कि उन्होंने मेरी आंखें खोली थी। तो वैभव सिंह जो कि डिफेंसिव ऑफेंस और डियो पॉलिटिक्स चैनल चलाते हैं, उनकी इजाज़त से मैं ये अमिंद्रा जी का इन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो मैं उसकी 3 मिनट का एक पार्ट आपके सामने लगा रहा हूं, सुनिए जरा। अकबर के सामने सब हिंदू राजा समर्पण कर चुके थे और मान सिंह जी आए और उनको समझाने की चेष्टा की कि आप समर्पण कर दें, मैं आपकी दोस्ती करा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, बेटी नहीं दूंगा, इसको चौथ नहीं दूंगा और इसकी चाकरी नहीं करूंगा, मरता मर जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा एक इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण था जो साका जौहर है। वो पूरा चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो आपके रक्त के आंसू आएंगे। मैंने उस चैप्टर को अपनी आत्मा मैंने उसमें निचोड़ी है। उस चैप्टर के अंदर 4 पीढ़ियां राजपूतों की खत्म हो गई इनसे लड़ते लड़ते। एक घर में बच्चा पैदा हो रहा था राजपूतनी के, उसके पति का 12वां हो रहा होता। और ये एक नहीं, हजारों घरों की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। महाराणा राज सिंह जी के बाद लगभग 1000 वर्षों तक, 1 सहस्त्र वर्षों तक ये एक परिवार मुसलमानों से सीधी टक्कर लेता है। प्रताप के ही कैटेगरी के राजा, लेकिन नाम विलुप्त हो गया हमारे इतिहास से। उनके बेटे करण सिंह, जगत सिंह और अंत में राज सिंह, जिन्होंने औरंगजेब तक को, ऐसा कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा है कि औरंगजेब तक को जिन्होंने गिरफ्तार किया था। क्योंकि हमारा हिंदू बुद्धिजीवी, हमारी लीडरशिप, हमारे इतिहासकार, हमारे तथाकथित इंटेलिजेंसिया, मैं क्या कहूं अब, या तो बिके हुए थे या सो रहे थे या इनमें आईक्यू ही नहीं थी कोई इतनी कि इतनी सरल सी चीज को ये लोग समाज के सामने ला सके कि भाई अगर हम 1000 वर्षों तक गुलाम रहे तो आज 100 करोड़ हिंदू कैसे हैं। पहला इस्लामी अटैक भारत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम करता है। ठीक है, वो दाहिर को मार डालता है, उनके भाई को मार डालता है, उनकी बच्चियों को कैद करके वो अपने खलीफा के पास ले जाता है। 500 वर्षों तक अरबों को भारत में पैर नहीं जमने दिया, सिंध से आगे हमने नहीं आने दिया। इस पर कोई शोध नहीं हुआ। डॉक्टर राम गोपाल मिश्रा ने अपनी पुस्तक लिखी है। तुम्हारी हिस्ट्री से लेकर ही मैं बता देता हूं कि हिंदू राजाओं ने कितनी रेजिस्टेंस की थी। और इस्लामी हिस्टोरियंस ने मेवाड़ की हिस्ट्री को बिल्कुल पोंछ डाला है, क्योंकि मेवाड़ में इनके जूते बहुत पड़े थे। सहस्त्र वर्षों की गुलामी का हिंदुओं का ये झूठ है। एक दिन के लिए भी हिंदू गुलाम नहीं रहे। एक दिन के लिए भी अगर हिंदू दास हो जाते इनके, तो फिर हमारा अस्तित्व मिट जाता। ये हमें पूर्ण तरह से समाप्त कर डालते। 3 बिल्डिंग्स बनी है
पूरे इस्लामी शासन में 3 बिल्डिंग्स बनी है, लाल किला जो भी कहते हैं कि शायद अनंगपाल ने बनाया था, ताजमहल और कुतुब मीनार, जिनके बारे में बहुत सारे प्रमाण हैं कि ये कुछ और थे। लेकिन चलिए हम 3 बिल्डिंग इनको ग्रांट कर देते हैं। अकेले महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के अंदर 32 दुर्ग बनवाए थे, जिनमें से एक है कुंभलगढ़, जो कि चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार है विश्व की। तो दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ इस देश के मक्कार, झूठे, बेईमान, बिके हुए इतिहासकारों ने गढ़ा और हमारे गले, बच्चों के गलों में ठूसा गया। वो 300 साल तो कोई मायने नहीं रखता इस देश के इतिहासकारों के लिए। इनके लिए वो 150 साल का जो मुगल काल है वो है गोल्डन पीरियड। लेकिन हिंदुओं का जो लॉस है वो फाइनल है। अगर एक बार किसी राजा की हार हो गई, बस खेल खत्म हो गया, उसका तो वंश मिट गया। इस दृष्टि से मेवाड़ के महाराणा फिर विलक्षण बन के आते हैं कि कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी बार चित्तौड़ हाथ से गया, कितनी बार उसको पुनः अर्जित किया। क्या इन लोगों का संकल्प था, क्या इन लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और क्या मूल्य ये लोग चुकाने को तैयार थे अपनी स्वतंत्रता की। और आखिर में ये वीडियो जो मैं शेयर कर रहा हूँ थोड़ी लंबी है, 15 मिनट, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह ये भारत की जो हेरिटेज है, जो हमारी पास्ट है, कितना ग्लोरियस था और क्या इसके अंदर चीज़ें, विस्डमफुल चीज़ें छुपी हुई थी। आज पिछले 100-150 साल से वेस्ट ने तरक्की की है, देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पास्ट में हमारे भारत के ज्ञानियों ने क्या क्या नहीं एक्सप्लोर कर लिया था। ये बड़ी डिटेल में है, 15 मिनट की। अपने देश की बड़ी खूबसूरत बातें जानने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों को हम गौर से सुनें। अजीज़ दोस्तों, आज जो मेरा ये पहला शो होता है, आजकल मैं 2 वीडियो लगाता हूँ, जिसमें पहली वीडियो पे मैं ये मुख्तलिफ ज्ञानी लोगों की चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद है आप इसको पसंद करते होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। अगर 4 भाइयों में 3 भाई रोजगार से हैं, 1 भाई बेरोजगार है, तो वो मिलकर उसका ध्यान रखते हैं। बेटा बेरोजगार है तो बाप मरते दम तक उसका ध्यान रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया जो कमाएगा वो खिलाएगा, जो आया है वो खाएगा। अरे भाई, आप तो सिर्फ आदमी तक रहे। हमारी ये सोच इतनी व्यापक थी। मैंने कहा ना, झूठ के पुलंदे कैसे रखे गए। अगर आप लोगों से बहुत को ध्यान हो तो जब पितृपक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष, जिसमें पूर्वजों के लिए किया जाता है, तो उस दिन, जिस दिन आप अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, उस दिन क्या होता है, 3 खाने के हिस्से निकाल के रखे जाते हैं। किसके लिए? एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए और एक गाय के लिए। क्यों? हमारे यहां गाय देवतुल्य पशु माना गया है, हाईएस्ट पेडेस्टल पे है। कुत्ते को शमशान का के देवता भैरव का वाहन माना गया है, एंड ऑफ द लाइफ की तरफ दर्शाता है। और कौवा उस प्रकार की श्रेणी का जंतु है जो कि तमाम गंदगियों को साफ करता है। यानी हम सिंबॉलिकली ये कह रहे हैं कि अगर भगवान ने हमको सबसे डेवलप्ड क्रीचर ऑफ द अर्थ और ऑफ द यूनिवर्स बनाया है, तो लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक हर आदमी का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। हर जीव जंतु का ख्याल रखना है। वो वहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिस्टमेटिकली बैठकर आप लोगों के दिमागों में, हम लोगों के दिमागों में 2-2, 3-3 पीढ़ी से ऐसी चीजें बैठाई गई जिसके ठीक उलट थी। 1-2 उदाहरण और दूंगा। जैसा अब ये भी ममता जी ने बोला फिल्मों के बारे में, फिल्मों में भी आपने देखा, जैसे उन्होंने बताया, एक ऐसा सीरियलों में कैरेक्टर होगा। अब मैं एक दूसरी बात की तरफ आता हूं। आपने जितनी हिंदी फिल्में देखी होंगी, भाई मैंने तो हिंदी और इंग्लिश के अलावा नहीं देखी, एक आधा उर्दू की फिल्म ही देखी है, अन्य भाषाओं की तो फिल्में मैंने देखी नहीं है। मगर हर हिंदी फिल्म में शुद्ध हिंदी बोलने वाला कैरेक्टर या तो विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। ये धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ गया। हीरो क्या बोलेगा?
60, 70 और 80 के दशक तक उर्दू मिक्स्ड हिंदी बोलता था, पिछले 20 साल से इंग्लिश मिक्स्ड हिंदी बोलेगा। आप सबने वो गाना सुना होगा, विनोद खन्ना जी जिनकी डेथ हो गई, एक उनके ऊपर है जिसको कॉमेडियन गाना माना जाता है, प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। ये गाना क्या माना जाता था? कॉमेडी का। और एग्जैक्टली यही गाना, यही वर्ड्स का गाना, इब्तिदाई इश्क में हम सारी रात जागे अल्लाह जाने क्या होगा आगे, यह अच्छा गाना। और इतना ही नहीं, जी हाल मुस्किन मुगम्बु रंजिश बहार हिजरा में सारा दिल है, इसमें दिल के अलावा कुछ समझ में आया नहीं। हिंदी के शब्द आ जाए, अरे साहब बड़ी कठिन हिंदी, बड़ी क्लिष्ट हिंदी, कहां से ले आए? अगर साफ साफ उर्दू भी बोल दिया, ये कहां ले आए? अंग्रेजी मिक्स्ड होना चाहिए। भाई अंग्रेजी मिक्स्ड होकर हम, देखिए ये सारी चीजें हम लोगों के दिमागों में बैठा ली जा रही हैं। हम कहां जा रहे हैं? एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। मैं किसी भाषा के प्रति सम्मान या असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, एक तथ्य सामने रखना चाहता हूं। अंग्रेजी भाषा में केवल 5 वॉवेल हैं, AEIOU, केवल 5 वॉवेल, और मात्रा पाई जैसी कोई चीज ही नहीं है। इसलिए इसमें साइलेंट का भी प्रॉब्लम है और एक्सेंट का भी प्रॉब्लम है। एक कश्मीरी और पंजाबी जिस एक्सेंट में बोलता है, एक बिहारी जिस एक्सेंट में बोलता है, एक तमिल और केरलाई जिस एक्सेंट में बोलता है, उसमें भारी अंतर है। मगर जिन लैंग्वेजेस की फोनेटिक्स डाइवर्सिफाइड है, अब जैसे उसमें मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं, संस्कृत। आप वैष्णो देवी के मंदिर जाइए या तिरुपति बालाजी के मंदिर, काशी विश्वनाथ या कामाख्या, जब पुजारी मंत्र बोलना शुरू करता है, एक्सेंट में कभी डिफरेंस देखा है? वो भी तो उसी इलाके के हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लैंग्वेज की फोनेटिक्स डेवलप्ड है, साइंटिफिक है। उदाहरण के लिए, आप सब ने कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, हिंदी में कहते हैं ना काखा गाघा अंगा, का जब बोलते हैं तो जबान कहां लगती है? फिर खा में और पीछे, गा में और पीछे, घा में और पीछे, जब अंगा बोलते हैं तो गले से निकलता है। द एंटायर फोनेटिक्स इज डिजाइंड एज पर द कंटूर ऑफ योर वोकल कार्ड। एक प्रकार के शब्द एक साथ, तथ दध ना सब दांत से दंतर, पफ पफ मा सब होठ से, इतना डेवलप्ड, इतना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, और हमें समझाया जा रहा है कि नहीं ये छोड़ दो, ये तो वैसी बात हो गई कि हमारे पास स्मार्टफोन है। मगर दुनिया जो है वो पुराना वाला जो नोकिया हम यूज करते थे उसके पीछे भाग रही है। तो नहीं जी, हम तो उसी के साथ चलेंगे। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमें एक ये समझाया जाता है साइंटिफिक नहीं है, हम लोग साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक एटीट्यूड से चलना चाहिए। मान लिया साहब, बिल्कुल साइंटिफिक एटीट्यूड से चलना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। अभी एक विवाद आ गया, तो उस विवाद पर नहीं जाना चाहता। जो वो हज का सब्सिडी खत्म हुई तो कुंभ मेले का विषय आ गया। कुंभ मेला हम सब जानते हैं। कुंभ मेले का एक एस्पेक्ट आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है? कुंभ मेला कितने साल में एक बार पड़ता है? 12 साल में। 12 साल में एक बार क्यों पड़ता है? क्योंकि वो जुपिटर की साइकिल पर आधारित है। बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्ष के बाद अपना एक चक्कर पूरा करके उसी राशि में दोबारा आता है, इसलिए कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार पड़ता है। हजारों सालों से चला आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको पता था ना कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है। इनको तो अभी 100 साल पहले पता चला कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है। और उसके बाद हमको समझा दिया जाता है नहीं साहब हम अनसाइंटिफिक थे। अब आप एक और बड़ी मजेदार बात देख लीजिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका डेट और टाइम कौन तय करता है? सरकार घोषणा करती है ना, टीवी पे आता है, रेडियो पे आता है, अखबार में आता है। किस बेस पे आता है? नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी बताती है कि फलां तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ेगा, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स। मगर ये बताइए 1950 से पहले तो नासा की ऑब्जर्वेटरी नहीं थी। 1920 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, उससे पहले रिलेटिव मोशंस ऑफ प्लैनेट नहीं पता था। सॉरी, 1916 में। 1920 में एडविन हबल एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी दी, उससे पहले एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स नहीं पता था। 1900 में मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने लाइट की क्वांटम की थ्योरी दी, फोटॉन्स वाली, उससे पहले प्रोपगेशन ऑफ लाइट ही नहीं पता था। 1897 में जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा, उससे पहले आप मानते थे एटम अनडिविजिबल है। और 1633 में आप ये कहते थे, गैलीलियो को फांसी दे रहे थे इस बात के लिए कि उसने कहा सन रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ गलत है।
तो भैया आप 380 साल चल के जहां पहुंचे हैं, हमारा पंचांग तो युधिष्ठिर के जमाने से एज इट इज चला आ रहा है 5100 साल। मतलब ये लॉजिक नहीं है, ये तो साइंटिफिक प्रूफ। फिर भी हमें समझाया जाता है कि साहब जो हमने सोचा उस सब हम अनसाइंटिफिक थे, हम गलत थे। बड़ी मजेदार बात है। इन ए स्पैन ऑफ लिविंग जनरेशन 50 साल में देखिए ये जो अर्बन नक्सल्स थे उन्होंने हमारे दिमागों में क्या क्या भरा और फैक्ट क्या था। 50 साल पहले जिस जिस चीज का मजाक उड़ाया गया वो चीज आज ठीक उसके उलट हो गई। 50 साल पहले कहते थे अरे यार ये अगर खेती करनी है तो मैकेनाइज फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो। गाय के गोबर से कोई खेती होती है? आदमी चांद पे पहुंच गया, तुम गाय के गोबर पे पड़े हो। आज नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाओ। 50 साल पहले क्या कहते थे? अरे भाई ये जड़ी बूटियों फल पत्ती खाने से कोई इलाज होता है? नीम हकीम खतरा है जान। खाना है तो नई दवाएं खाओ, क्लोसिन, मेटासिन, टेरामाइसिन। आज आप क्या कहते हैं? नहीं, केमिकल नहीं, हर्बल मेडिसिन की तरफ जाओ। ठीक, आज से केवल 50 साल पहले आप ये कहते थे, जब हम कहते थे पेड़ों की रक्षा करो, जंगल की रक्षा करो, पहाड़ की रक्षा करो, कहते थे दिस इज द रेमिनिसेंस ऑफ ए प्रिमिटिव ट्राइबल सिविलाइजेशन। आज 1992 के रियो डी जेनेरो से लेकर 2009 के कोपेनहेगन से लेकर 2016 के पेरिस तक आप कहते हैं नेचर फ्रेंडली डेवलपमेंट करो। भैया सब कुछ उलटता जा रहा है। जो हमने कहा, जिसका आपने मजाक उड़ाया, वो सब कुछ सही होता जा रहा। अब मैं एक और बात कहूंगा जिसका कि बहुत मजाक उड़ाया गया, शायद हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। भारत में यह कहा जाता था कि ज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यान लगाओ। संत महात्मा जाके गुफा में ध्यान लगाते थे, पीर फकीर जाके कहते थे इल्हाम हो जाएगा। लोग कहते थे क्या बेवकूफ है, हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि जाके ध्यान लगाया और ज्ञान प्राप्त हो गया? इफ यू वॉन्ट टू अटेन नॉलेज यू मस्ट आउटरीच, अंडरस्टैंड द थिंग्स, मीट द पीपुल, विजिट द प्लेस, लाइक व्हाट डार्विन हैज डन। अब 50 साल बाद मैं आपसे पूछता हूं, आपको न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ना है तो दो रास्ते हैं। एक, यहां से दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़िए, 16 से 22 घंटे लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लाइट, और आज का अखबार कल पढ़िए। और दूसरा है कि मोबाइल पे डाउनलोड करिए खट से और पढ़ लीजिए। क्यों? आपके हाथ में डिवाइस है, जिसने डिवाइस बनाई उसने सॉफ्टवेयर भी बनाया है, और जिसने सॉफ्टवेयर बनाया उसने सपोर्टिंग नेटवर्क भी बनाया है। उसी ढंग से हमारा शरीर एक डिवाइस है, तो इसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और कॉन्शियसनेस एक सॉफ्टवेयर है, और उसका कनेक्टिंग नेटवर्क भी है। बस नेटवर्क से कनेक्ट होना है और सब डाउनलोड है। और अंत में मैं एक उदाहरण दूंगा। सब कुछ कहा जाता था कि पैसे के कारण शोषण हुआ, इसलिए खड़े हो जाओ, लोगों के साथ भिड़ जाओ। हमारे यहां परंपरा में त्याग का महत्व था। हम आपसे पूछें, दो राजा बताइए जो सबसे बड़े महान माने गए भारतीय संस्कृति में, राजा राम और राजा हरिश्चंद्र। दोनों इसलिए कि त्याग किया, इसलिए नहीं कि बड़ा बड़ा इलाका अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह कब्जा कर लिया। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, वो त्याग कैसे समाज में रचा बसा था। हमारे पूज्य संतों में से एक हुए संत रविदास, काशी के रहने वाले थे। उनके पास भगवान राम की एक मूर्ति थी। काशी नरेश उनके पास गए, कहा जाता था इतनी सिद्ध मूर्ति है, आप कृपया इसे मुझे दे दीजिए। ऐसी मूर्ति राजा के पास होनी चाहिए, राजभवन में, ना कि इसमें मैं इस मूर्ति के वेट का 10 गुना सोना आपको दे दूंगा। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी इसके वेट का 100 गुना सोना दे दूंगा। उन्होंने मना कर दिया। तो राजा को थोड़ा क्रोध आ गया। उसने कहा ऐसा है रैदास जी, आज जिस झोपड़ी में रह रहे हैं इसमें जितना सोना आ सकता हो नीचे से ऊपर तक उतना भर लीजिए, उतना मैं आपको देने को तैयार हूं। तो एक बार उनकी पत्नी का मन आया कि भाई ऐसा बढ़िया ऑफर नहीं मिलेगा, अब हमें इस पर विचार कर लेना चाहिए। रैदास ने क्या जवाब दिया? एक मोरो राम नाम धन, एक मोरी आशा, ऊ धन आई है ई चले जाइए, ना चाहे भगत रैदासा। मना कर दिया। रैदास जी क्या थे? वो जूते बनाते थे, आज की परिभाषा के अनुसार दलित थे। अब आप आइए, संत कबीर जुलाहा थे, आज की परिभाषा के अनुसार ओबीसी। जब उन्होंने, उनके बेटे ने भगवान के भजन के बजाय पैसा कमाना शुरू किया तो कबीर ने क्या कहा? उनके बेटे का नाम था कमाल। उन्होंने कहा बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल,
और हरिका भजना छोड़ के घर ले आया माल। यानी उन्होंने उसको डिस्कार्ड किया। आप त्याग में रह के दिखाएंगे। अब आप आइए, मीराबाई राज परिवार की थी आज के हिसाब से, फॉरवर्ड। और उन्होंने क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और जन्म जन्म की पूंजी पाई बाकी सबे लुटायो। उन्होंने भी पैसे की तरफ नहीं रहा। और अंत में ये सब एक ही कंटेम्परेरी है, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, वो ब्राह्मण थे, फॉरवर्ड आज के जमाने के हिसाब से। कहा जाता अकबर उनके पास गए, अकबर ने कहा कि आप हमारे दरबार में आकर स्थान ग्रहण करिए, हम आपको 60,000 की मनसबदारी देंगे। उस जमाने में मनसबदारी एक रैंक होती थी, तो जैसे 40,000 की मनसबदारी वॉज मैक्सिमम, 60,000 का मतलब हुआ कि राजा के बाद सबसे बड़ा स्टेटस आपका होगा। तो तुलसी ने क्या जवाब दिया, हम तो सेवक राम के हियो धरो दरबार, हमारे तो हृदय में भगवान राम का दरबार धरा हुआ है। तुलसी का अब होएंगे नर के मनसबदार। ये मैंने क्यों बताया, जो बातें ये अर्बन नक्सलिस्ट समझाते हैं कि शोषण किया गया, कैपिटलिज्म किया गया, अगर मार्क्स ने कहा धर्म एक अफीम है जो गरीबों को पिला दी जाती है ताकि अमीर उस पर हुकूमत करता रहे, पर यहां ऐसा नहीं था। मैंने दिखाया समाज का निचला वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, राज करने वाला वर्ग हो, सबने कहा जो त्याग करेगा वो महान होगा। इसीलिए हमारे यहां महात्मा गांधी महान हुए, ना कि प्रधानमंत्री रहने वाले नेहरू महान। तो इसलिए मैं अंत में ये कहूंगा आप सभी लोगों से कि ये जो मायावी रावण साधु का वेश बना के आता है, सूक्ष्म दृष्टि से इसको समझिए और आश्वस्त रहिए कि वो चाहे कितना भी मायावी हो, अंत में विजय हमारी ही होगी, क्योंकि हम आज दुनिया के यंगेस्ट नेशन है। जैसा अभी नलपत जी ने कहा ना कि भाई पीपल लाइक अस वी आर इन माइनॉरिटी, हम देश दुनिया के सबसे युवा देश हैं, यह सत्य है, मगर यह अर्ध सत्य है। हम सबसे युवा देश और सबसे प्राचीन सभ्यता है। वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो एक गौरवशाली हमारा भूतकाल है और एक शानदार भविष्य है जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस बीच के इस माया के प्रपंचों को से हम बचे रहें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। एक पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।